ओम श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की मनमोहक श्रृंखला। आज के प्रसारण में आप प्रेमावतार श्री सत्यसाई कार्यक्रम के अंतर्गत दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के अलौकिक जीवन काल के कुछ प्रसंग एवं गान सरिता के तहत सुंदरकांड भावार्थ सहित सुनेंगे। हम दिव्यानुभव के अंतर्गत एक वार्ता के साथ ही साथ अवतार वाणी के अंतर्गत श्री भगवान द्वारा दिए गए दिव्य संदेश का एक भाग भी सुनेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम अवतार वाणी। भगवान बाबा द्वारा 22 अगस्त सन 1984 को श्रीमद् भगवत गीता पर दिए गए दिव्य संभाषण का एक भाग आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ప్రేమ స్వరూపులారా, సర్వత్ర పంచభూతాని షష్టం కించిన్న విద్యతే. పాతాళలోకమునందు కానీ భూలోకమునందు కానీ మరి ఏ స్వర్గలోకమునందైనప్పటికీ పంచభూతములు తప్ప ఇంకా ఆరో భూతం అనేటువంటిది ఎక్కడ కూడాను కనిపించదు. కనుక దేనిని ఆశించినప్పటికీ, దీనిని విసర్జించినప్పటికీ, దీనితో సంయోగం కలిగినప్పటికీ, దీనితో వియోగం సంభవించినప్పటికీ పంచభూతముల యొక్క పరిణామము తప్ప అన్యము కాదు. सर्वत्र पंचभूतानि षष्टम किंचिन्न विद्यते. पाताल लोक में, भूलोक में या चाहे स्वर्ग लोक में 5 भूतों के अतिरिक्त छठा भूत कहीं भी नहीं दिखाई पड़ता है. अतः जिसकी भी अपेक्षा करें, जिसका भी त्याग करें, चाहे जिससे भी संबंध स्थापित करें या जिससे भी वियोग घटित हो, सब कुछ पंचभूतों के परिणाम के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है. ఈ పంచభూతములు నశ్వరమైనటువంటివి, నిరంతరము మార్పు చెందేటువంటివి. నేడు వికసించినటువంటి పుష్పము రేపటికి వాడిపోతుంది. రేపు వాడిపోయిన పుష్పము మరునాడు కుళ్ళిపోతుంది. నేడు వండిన అన్నము రేపటికి పాసిపోతుంది. పాసిపోయిన అన్నం పక్వానికి రాదు. తదుపరి అది ఏ విషముగా మారిపోతుంది. నేడు అందచందముగా ఉండినటువంటి ఆకారము కొన్ని వర్షములకు వికారముగా మారిపోతుంది. ये पंचभूत नश्वर हैं, निरंतर परिवर्तित होने वाले ही हैं. आज खिला फूल कल मुरझा जाएगा, कल तक मुरझाया फूल अगले दिन तक सड़ जाएगा. आज पकाया भात कल तक बासी पड़ जाएगा, बासी पड़ा भात खाने लायक नहीं होगा, अगले दिन तक वह जहर हो जाएगा. आज जो रूप अत्यंत सुंदर है वह कुछ वर्षों के बाद विकृत हो जाएगा. నేడు చంద్రుని యందు ఉన్నటువంటి అణువు రేపు భూలోకానికి దిగవచ్చు. నేడు భూమిపై ఉన్నటువంటి అణువు రేపటి దినం చంద్రమండలాన్ని చేరవచ్చు. ప్రతి 7 సంవత్సరంలో కూడాను దేహమునందున్నటువంటి యొక్క అణువులన్నీ కూడాను పూర్తిగా మారిపోతాయి. ఇట్టి అణువుతో కూడినటువంటి యొక్క ఇంద్రియములను స్థిరముగా భావించి అవి ఏ సత్యములను విశ్వసించి వాటి వెంట వెంటాడటం ఇది సరి అయినటువంటి యొక్క కర్తవ్యం కాదు. आज चंद्रमा में जो अणु है वह कल तक धरती पर आ सकता है. आज
धरती पर जो अणु है वह कल तक चंद्रमा पर पहुंच सकता है। 7 वर्षों के बीतते बीतते शरीर के सारे कण पूरी तरह बदल जाते हैं। ऐसे अणुओं से युक्त इंद्रियों को स्थिर मानकर, उन्हें ही सत्य मानकर उनका पीछा करना सही कर्तव्य नहीं है। ఇవి కేవలము బాహ్య సంబంధమైనటువంటి విషయములను మాత్రమే వెంటాడుతూ ఉంటాయి. వీటిని 24 తత్వములతో కూడినటువంటి మాయా స్వరూపమని కూడాను నిరూపించింది భగవద్గీత. ఇంకా ఆత్మతో కూడి 25 తత్వములతో నిండినటువంటిదని కూడాను నిరూపించాడు బాలరాజు. వీటిని మనం సులభంగా అర్థం చేసుకునే వలన 5 కర్మేంద్రియములు, 5 జ్ఞానేంద్రియములు, 5 ప్రాణములు, 5 కోశములు, మనస్సు, బుద్ధి, చిత్తము, అహంకారము ఇవన్నీ చేరితే 24గా తయారవుతుంది. ఇంకా ఆత్మతో కూడినప్పుడు 25గా రూపొందుతుంది. ये सदा बाह्य विषयों का ही पीछा करते रहते हैं। भगवत गीता ने इन्हें 24 तत्वों से युक्त माया स्वरूप के रूप में निरूपित किया है। आत्मा के जुड़ने पर इन्हें 25 तत्वों के रूप में बालराजू ने निरूपित किया है। इन्हें सरलता से समझना है तो 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 प्राण, 5 कोश तथा मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन सब के जुड़ने पर 24 तत्व होते हैं। इनके साथ आत्मा के जुड़ने पर ये 25 तत्वों में रूपायित होते हैं। ఈ 24 అవిద్యా లక్షణములైనటువంటివి కనుక, అవిద్యా వస్తువులైనటువంటివి కనుక, ఈ అవిద్యా వస్తువును లెక్కించేటువంటి యొక్క దీనిలో ఈ సాంఖ్యము కొంత సహాయకారైనటువంటిది కనుక దీనికి సాంఖ్యయోగము అని పేరు వచ్చింది. శబ్ద, స్పర్శ, రూప, రస, గంధం. ఇంకా కర్మేంద్రియమైనటువంటివి కన్ను, ముక్కు, చెవు, నోరు, చర్మం. కన్ను ఉండవచ్చును, అది కర్మేంద్రియము, కానీ దృష్టి లేకపోవచ్చు. కనుక కన్ను కర్మేంద్రియము, ఆ దృష్టియే జ్ఞానేంద్రియము. నోరు ఉండవచ్చును, కానీ మాట్లాడలేకపోవచ్చు. నోరు కర్మేంద్రియము, మాటలు లేకపోవటం జ్ఞానేంద్రియం. అనేక మందికి చెవులు ఉంటుంటాయి కర్మేంద్రియములు, కానీ వినిపించవు. కనుక నీ కర్మేంద్రియములతో కూడినటువంటివి జ్ఞానేంద్రియములు, జ్ఞానేంద్రియములతో చేరినటువంటివి కర్మేంద్రియములు. ये 24 तत्व अविद्या लक्षण होने तथा अविद्या वस्तुएं होने के कारण इनकी गिनती के संदर्भ में सहायक सिद्ध होने के कारण इसे सांख्य कहा गया है। आँख, नाक, कान, मुंह और त्वचा ये कर्मेंद्रिय हैं। आँख हो सकती है, वह कर्मेंद्रिय है, परंतु दृष्टि नहीं हो सकती है। अतः आँख कर्मेंद्रिय है और उसकी दृष्टि ज्ञानेंद्रिय है। मुंह हो सकता है परंतु बातें नहीं कर सकता है। मुंह कर्मेंद्रिय है तो बातों का होना ज्ञानेंद्रिय है। कर्मेंद्रिय कान होते हैं परंतु सुनाई नहीं देते हैं। अतः कर्मेंद्रियों से जुड़े रहने वाले ही ज्ञानेंद्रिय हैं और ज्ञानेंद्रियों से जुड़े रहने वाले ही कर्मेंद्रिय हैं। కనుక కర్మేంద్రియములు 5, జ్ఞానికి అంతర్భావంతో శక్తి సామర్థ్యము నిరూపించేటువంటి జ్ఞానేంద్రియములు 5, ఇవి 10. ఇంకా కోశములు 5, అన్నమయ, మనోమయ, ప్రాణమయ, విజ్ఞానమయ, ఆనందమయ. ప్రాణ, అపాన, వ్యాన, ఉదాన, సమాన, ఇవి పంచభూతములు, పంచప్రాణములు. ఇవి అన్నీ చేర్చి 20 అవుతుంది. మనస్సు, బుద్ధి, చిత్తము, ఇంద్రియ, అహంకారము, ఈ 4 చేర్చి 24 అవుతుంది. अतः कर्मेंद्रिय 5 हैं और उनकी आंतरिक शक्ति को निरूपित करने वाले 5 तत्व ही 5 ज्ञानेंद्रिय हैं। ये कुल 10 हैं। इनके बाद 5 कोश हैं: अन्नमय, मनोमय, प्राणमय, विज्ञानमय और आनंदमय कोश। प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, ये 5 प्राण हैं। इन सब को जोड़ने पर कुल 20 होते हैं। इनके साथ
मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार के जुड़ने पर कुल 24 होते हैं। ఇవన్నీ కూడాను కేవలము అవిద్యా ప్రభావముతో ఉండినటువంటి వస్తువులు కనుక వీటిని లెక్కించటం వల్ల దీనికి సాంఖ్యము అని వచ్చింది. కనుక ఇట్టి మార్పు చెందేటువంటి ఇంద్రియముల ద్వారా మార్పు చెందినటువంటి ఆనందం మనకి ఏ రీతిగా లభిస్తుంది? మనం అనుభవించేటువంటి ఆనందములన్నీ కూడాను దుఃఖ కారణములైనటువంటివి కనుక ఇవి శాశ్వతమైనటువంటివి కావు, ఇవి వచ్చి పోయేటువంటివి కనుక వీటిని మాత్రం నీ విశ్వసించి నీ ఇంద్రియములను పెడమార్గం పట్టించుకోవద్దు అని కృష్ణుడు బోధించాడు. ये सभी अविद्या के प्रभाव से युक्त होने के कारण, इनकी गिनती में सहायक होने के कारण इसे सांख्य कहा गया है। अतः ऐसी परिवर्तनशील इंद्रियों के माध्यम से हमें अपरिवर्तनशील आनंद की प्राप्ति कैसे होगी? हम जिन आनंद का अनुभव कर रहे हैं वे सब दुख कारक ही हैं। अतः ये शाश्वत नहीं हैं, ये आने जाने वाले ही हैं। अतः श्री कृष्ण ने उपदेश दिया कि इन पर विश्वास कर अपनी इंद्रियों को गलत मार्ग पर मत जाने दो। ఎంతటి విద్యావంతుడైనా, ఎంతటి అధికారి అయినా, ఎంతటి పదవి ఉండినప్పటికీ, ఎంతటి సిరి సంపదలతో కూడిన వాడైనప్పటికీ ఇంద్రియములను నిగ్రహించుకొని లేకుండా వాడికి శాంతి అనేటువంటిది లభించదు. కనుక శాంతి అనేటువంటిది ఇంద్రియ నిగ్రహం ద్వారానే మనకు లభిస్తుంది. चाहे कितना बड़ा विद्वान क्यों न हो, चाहे बड़ा अधिकारी क्यों न हो, चाहे कितने ही ऊंचे पद पर क्यों न हो, चाहे कितनी ही धन संपत्ति क्यों न हो, परंतु यदि वह अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में नहीं करता है तो उसे शांति बिल्कुल प्राप्त नहीं होगी। शांति की प्राप्ति हमें इंद्रियों के नियंत्रण से ही होती है। ఈ విధమైనటువంటి ఇంద్రియ నిగ్రహ నిమిత్తమై ఈ సాంఖ్యయోగంలో అనేక విధములుగా కూడాను అర్జునుడికి బోధించాడు కృష్ణుడు. ఈ ఇంద్రియ నిగ్రహం ఏ రీతిగా మనం చేయటం, ఇంద్రియ నిగ్రహం అనేటువంటిది చాలా కష్టమైనటువంటి అని భావిస్తుంటారు. अतः श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस सांख्य योग में इंद्रिय नियंत्रण से संबंधित अनेक उपदेश दिए। इंद्रियों का नियंत्रण किस प्रकार किया जाना चाहिए? लोग विचार करते हैं कि इंद्रियों का नियंत्रण अत्यंत कठिन है। ఇక్కడ అనార్య దుష్టం అని అన్నాడు కృష్ణుడు. అనార్య దుష్టం అనగా ఆర్యులని అనార్యులని రెండు తెగల వారు ఉంటున్నారు. సన్మార్గమును, పవిత్రతను, ప్రకాశమును ఆశ్రయించి ఆచరించి అనుభవించేటువంటి వారు ఆర్యులు అని. ఇంకా అపవిత్రమైనటువంటి భావములతో, అశుద్ధమైనటువంటి హృదయాలతో వారు చీకటిగా అనగా అజ్ఞానమును కమ్మి అపవిత్రతతో జీవించేటువంటి వారంతా అనార్యులు అని. यहाँ श्री कृष्ण ने अनार्य जुष्टम कहा। यहाँ आर्य और अनार्य के रूप में दो जातियां विद्यमान हैं। सन्मार्ग, पवित्रता और प्रकाश का आश्रय ग्रहण कर उनका आचरण कर उनका अनुभव प्राप्त करने वाले ही आर्य हैं। अपवित्र भावनाओं, अशुद्ध हृदयों और अज्ञान के साथ जीवन यापन करने वाले अनार्य हैं। సన్మార్గమునకు విరుద్ధము దుర్మార్గము, పవిత్రతకు విరుద్ధము అపవిత్రము, ప్రకాశమునకు విరుద్ధము అంధకారము. వీరందరూ కూడాను వీరే దేవతలు, రాక్షసులు అని పిలువబడుతూ వచ్చింది. పవిత్రతతో కూడి సద్గుణములతో ఉండి ప్రకాశవంతమైనటువంటి జ్ఞానతత్వంలో ప్రవేశించినటువంటి వ్యక్తులు వీరు ఆర్యులు అని నిర్ణయం చేసింది. सन्मार्ग का विपरीत दुष्ट मार्ग है, पवित्रता का विपरीत अपवित्रता है, प्रकाश का विपरीत अंधकार है। इन्हीं को देवता और राक्षस कहा गया है। यह निश्चित किया गया है कि जो पवित्रता से युक्त, सद्गुणों से पूर्ण और प्रकाशमान ज्ञान तत्व में पहुंचे हुए होते हैं वे आर्य हैं। అర్జున, నీవింతవరకు నేను ఆర్యుడిని భావించాను.
నీవు దుర్మార్గమనేటువంటి మార్గంలో ప్రవేశిస్తున్నావు, అపవిత్రమైనటువంటి మార్గాన్ని అనుసరిస్తున్నావు, అంధకారంలో మునిగి ఉంటున్నావు, నీవు అనాథుడిగా నిరూపిస్తూ ఉంటున్నావు. ఇలాంటి వాడిని ఆర్యుడని చెప్పుకోవటం కూడాను సిగ్గుల చేయటం అన్నాడు. కనుక నీవు ఆర్యుడు కమ్మని అనేక విధములుగా కూడాను ప్రోత్సాహాన్ని ఉత్సాహాన్ని పురికొల్పాడు. श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, अब तक मैं तुम्हें आर्य समझता रहा, किंतु तुम दुष्ट मार्ग में प्रवेश कर रहे हो, अपवित्र मार्ग का अनुसरण कर रहे हो, अंधकार में डूबते जा रहे हो, स्वयं को अनार्य निरूपित करते जा रहे हो. ऐसे में तुम्हें आर्य कहना शर्म की बात है. इस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन को आर्य बनने के लिए अनेक प्रकार से प्रोत्साहित किया. ఈ అజ్ఞానమునకు మూల కారణము నీ యొక్క మోహము, ఈ మోహమునకు పునాది అజ్ఞానము. ఈ దుఃఖ మోహన అజ్ఞానములు మూడు కూడాను కొంతవరకు అరికట్టుకునే వలన నీ యొక్క ఇంద్రియ నిగ్రహానికి తగిన ప్రయత్నం చేయమన్నాడు. ఇంద్రియముల విషయాన్ని చక్కగా గమనించాలి. ఇప్పుడు श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हारे इस अज्ञान का मूल कारण तुम्हारा मोह ही है. इस मोह की नींव अज्ञान ही है. अतः इन दुख, मोह और अज्ञान पर नियंत्रण पाना है तो अपनी इंद्रियों को वश में करने के प्रयत्न करने चाहिए. इंद्रियों के विषय को बड़ी सावधानी से देखना चाहिए. अभी आप सुन रहे थे अवतार वाणी. आज आपने भगवान बाबा द्वारा सन 1984 में श्रीमद् भगवत गीता पर दिए गए दिव्य संभाषण का एक भाग सुना. अब प्रस्तुत है गान सरिता के अंतर्गत सुंदरकांड. इसे गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस से लिया गया है. संगीतमय रूप से इसे भगवान बाबा के संगीत महाविद्यालय संकाय के छात्रों ने सजाया है. ये सीडी के रूप में भी उपलब्ध है. पेश है इसका 10वां भाग. पृथ्वी हिलने लगी, पर्वत कांपने लगे और सागर खलबलाने लगा. गंधर्व, देवता, मुनि, नाग, किन्नर आदि सभी मन ही मन हर्षित हुए कि अब हमारे दुख टल गए. करोड़ों महाविकट वानर योद्धाओं के समूह क्रोधोन्माद में कटकटाहट कर रहे हैं, तो वहीं अन्य करोड़ राम जी की जय जयकार कर उन्माद में दौड़ रहे हैं. वे सभी प्रभु के प्रबल प्रताप का गुणगान कर रहे हैं. उस सेना के भार से महान एवं परम उदार शेष जी भी मानव पृथ्वी को संभालते हुए अपना संतुलन खो बैठते हैं और बार बार अपने को नियंत्रण में करने के प्रयास में उन्हें कछुए की कठोर पीठ पर अपने दांतों को गड़ाना पड़ता है. ऐसा प्रतीत होता है जैसे वे श्री रामचंद्र जी की अमर प्रस्थान यात्रा की अचल एवं पवित्र कथा को अत्यंत ही सुहावनी जानकर कछुए की कठोर पीठ पर मानो लिख रहे हों. इस प्रकार करुणा निधान श्री राम जी समुद्र तट पर जा उतरे. भालू, वानर, वीर आसपास जाकर फल खाने लगे. उहाँ निसाचर रहहि सशंका, जब ते जारे गयं कपिलंका. निज निज ग्रह सब करहि विचारा, नहीं निसिचर कुल केर उबारा. जासुदूत बल बरनि न जाए, तेहि आए पुर कवन भलाए. दुतिन्ह सन सुनि पुर जन बानी,
मंदोदरी अधिक अकुलाने। रहसी जोरी कर पति पगलागी, बोली बचन नीति रस पागी। कंत करश हरि सन परिहरहु, मोर कहाति हित ही अधरहु। समुझत जासु दूत कई करने, स्रवहि गर्भ रजनी चर घरने। तासु नारी निज सचिव बोलाई, पठवहु कंत जो चहु भलाई। तव कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निसा सम आई। सुनहु नाथ सीता बिनु दीन है, हित न तुम्हार संभुअज कीन है। राम बान ही गन सरिसा, निकर निसाचर भेक। जब लगी ग्रसत न तब लगी, जतनु करहु तजी टेक। जब से हनुमान जी लंका जलाकर गए हैं, तब से वहां सभी राक्षस भयभीत रहते हैं। सभी ये सोच सोच कर व्याकुल उठते हैं कि जिसका दूत ही इतना बलवान हो कि उसका वर्णन करना कठिन है, जब वो स्वयं यहां आ जाएगा तब कौन बचाएगा। जब मंदोदरी को दासियों के माध्यम से नगरवासियों की इस मनस्थिति की सूचना मिली, तब वो और भी अधिक व्याकुल हो उठी। एकांत में उसने अपने पति के चरणों में गिरकर अपने हाथ जोड़कर नीति युक्त विनम्र प्रार्थना की, हे प्रियतम, कृपया मेरी बात मान लीजिए और श्री हरि से द्वेष त्याग दीजिए। इसी में सभी की भलाई है। जिनके दूत का ही इतना आतंक है कि उसके स्मरण मात्र से ही सभी निशाचरों की स्त्रियां इतनी भयाक्रांत हो उठें कि उनका गर्भपात हो जाए, तब हे प्राणनाथ, यदि भलाई चाहते हैं तो अपने सचिव को बुलाकर उनकी अर्धांगिनी को भेज दीजिए। आपके कमल दल रूपी कुल के लिए सीता साक्षात शीत ऋतु की दुखदाई रात्रि के ही समान आई है। स्वामी, सीता को लौटाए बिना तो भगवान शिव और ब्रह्मा जी भी आपका भला नहीं कर सकते। श्री राम जी के बाण साक्षात सर्पों के समूह के सदृश हैं और उनके सामने निशाचर मेंढकों से अधिक नहीं है। इससे पहले कि वे इन्हें अपना ग्रास बना लें, हे प्राणनाथ, आप हट छोड़कर कुछ करने का उपाय कीजिए। श्रवण सुनी सठ ताकरी बानी, बिहसा जगत विदित अभिमानी। सभय सुभाव नारी कर साचा, मंगल महु भय मन अति काचा। जो आवई मरकट कटकाई, जियहि बिचारे निसीचर खाई। कपही लो कप जाकी त्रासा, तासु नारी सभीत बड़ी हासा। हस कहीं भी हसीताही उरलाई, चले सभा ममता धिकाई। मंदोदरी हृदयं कर चिंता, भयं कंत पर विधि विपरीता। बैठे सभा खबरी असी पाई, सिंधु पार सेना सब आई। बुझे सी सचिव उचित मत कहूँ, ते सब हसे मष्ट करी रहूँ। जिते हूँ सुरासुर तब श्रम नाही, नर बानर के ही लेखे माही। सचिव वैद गुर तीन जो, प्रिय बोलहि भयास। राज धर्म तन
तीनी कर होई बेगी नास। जग प्रसिद्ध अभिमानी वो मूर्ख उसकी बात सुनकर ठहाका लगाकर हंसने लगा और बोला, सच में स्त्रियों का स्वभाव बहुत ही डरपोक होता है। उन्हें मंगल में भी अमंगल का भय रहता है। उनका हृदय भी कच्चा होता है। यदि वानरों की सेना आएगी भी तो बेचारे राक्षस उन्हें खाकर जीवन निर्वाह कर लेंगे। ये बड़ी हंसी की बात है कि लोकपाल भी जिससे डरते हैं उसकी अपनी स्त्री इतनी भयभीत हो उठती है। ऐसा कहते हुए रावण ने हंसकर उसे हृदय से लगा लिया और अधिक स्नेह दिखाकर उसने सभागार की ओर प्रस्थान किया। किंतु मंदोदरी मन ही मन चिंतित हो सोचने लगी कि विधाता ने इनकी बुद्धि फेर दी है। सभा भवन में जाकर बैठते ही उसे सूचना मिली कि वानरों की सेना समुद्र के इस पार आ गई है। उसके ये पूछने पर कि अब क्या करना चाहिए, मंत्रियों ने हंसकर कहा, इसमें सलाह की क्या बात है, आप चिंता न करें। जब आपने बिना परिश्रम के सुरों एवं असुरों को जीत लिया तब ये मानव एवं वानर किस खेत की मूली हैं। मंत्री, गुरु एवं चिकित्सक जब ये तीनों भय अथवा लालच से प्रिय बोलने लगते हैं तब शीघ्र ही राज्य, धर्म एवं शरीर इन तीनों का नाश हो जाता है। सोई रावण कहूँ बनी सहाय, स्तुति करहि सुनाई सुनाई। अवसर जानी विभीषण आवा, भ्राता चरण सीसुते ही नावा। पुनि सिरुनाई बैठ निज आसन, बोला बचन पाई अनुशासन। जो कृपाल पूछी हूँ मोहि बाता, मति अनुरूप कहूँ हित ताता। जो आपन चाहे कल्याणा, सुजसु सुमति शुभ गति सुख नाना। सो पर नारी लीलार गोसाई, तजऊ चौथी के चंद किनाई। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तेष्टई नहीं सोई। गुण सागर नागर नर जो, अल्प लोभ भल कहई न को। काम क्रोध मद लोभ सबा, नाथ नरक के पंथ। सब परिहरी रघुबीर ही, भजऊ भजहि जेहि संत। रावण के लिए ऐसी सहायता संयोगा बनी है। सब उसे सुना सुनाकर उसके मुंह पर उसकी स्तुति कर रहे हैं। इस अवसर पर आवश्यकता को देखते हुए विभीषण ने आकर अपने भ्राताश्री के चरणों में शीश झुकाकर प्रणाम किया और अपने आसन पर जा बैठे। रावण की आज्ञा पाकर बोले, हे कृपालु, जब आपने मुझसे राय पूछी ही है तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुरूप आपके हित की ही बात कहता हूं। मनुष्य यदि अपना कल्याण, सुयश, सुबुद्धि, मोक्ष एवं नाना प्रकार के सुख चाहता हो तो हे स्वामी, उसे पराई स्त्री के मुख की ओर चौथ के चंद्रमाही के समान आंख उठाकर भी नहीं देखना चाहिए। अन्य जीवों से बैर मोल लेकर तो कोई भी नहीं बच सकता, चाहे वो 14 भुवनों का स्वामी ही क्यों ना हो, कोई भले ही गुणों का सागर ही क्यों ना हो एवं कितना ही चतुर क्यों ना हो। किंतु यदि वो लोभी स्वभाव का है तो कोई भी उसे अच्छा नहीं कहता। हे नाथ, काम, क्रोध, लोभ, मद ये सभी नरक के रास्ते हैं। इन सब को छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भजिए। स्वयं संत पुरुष आदि भी जिनका भजन करते हैं। तात राम नहीं नर भूपाला,
भुवनेश्वर कालहु कर काला। ब्रह्मनामय अज भगवंता, व्यापक जित अनादि अनंता। गोद्विज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। जनरंजन भंजन खल भ्राता, वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता। ताहि भयरु तजिनाई माथा, प्रणतारति भंजन रघुनाथा। देहुनाथ प्रभु कहूँ बैदेही, भजहु राम बिनु हेतु सनेही। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्वद्रोह कृत अग जेहि लागा। जासु नाम त्रय ताप न सावन, सोई प्रभु प्रगट समुझु जिय रावण। बार बार पद लागऊं, विनय करऊं दस शीस। परिहरि मान मोह मदा, भजऊं कौशलाधीश। मुनि पुलस्ति निज शिष्य सना, कहीं पठई यह बात। तुरत समय प्रभु सन कहीं, पाई सुअवसरुतात। हे तात, श्री राम जी केवल मानवों के ही राजा नहीं हैं, बल्कि वे तो समस्त लोगों के स्वामी और स्वयं काल के भी काल हैं। वे साक्षात परब्रह्म, विकार रहित, अजन्मा, व्यापक, अजेय, अनादि और अनंत भगवान ही वे हैं। पृथ्वी, ब्राह्मणों, गोमाता एवं देवों के हित के लिए ही मानव रूप में स्वयं करुणा सिंधु ने अवतार लिया है। इतना ही नहीं भ्राताश्री, वे सेवकों को आनंद देने वाले, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले तथा वेद एवं धर्म की रक्षा करने वाले भी हैं। उनसे बैर त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइए। श्री रघुनाथ जी तो शरणागत का दुख हर लेते हैं। हे नाथ, मेरा कहा मानकर माता सीता को उन्हें लौटा दीजिए और बिना किसी कारण के भी प्रेम करने वाले श्री राम जी का भजन कीजिए। चाहे किसी को विश्वद्रोह का पाप ही क्यों न लगा हो, शरण में जाने पर प्रभु उसको भी नहीं त्यागते। हे भ्राताश्री, ये जान लीजिए कि जिनके नाम मात्र में ही 3 प्रकार के दुखों को मिटाने की क्षमता है, वे सर्वेश्वर स्वयं ही मनुष्य रूप में इस धरती पर अवतरित हुए हैं। हे भ्राताश्री, मैं बारंबार आपके चरणों में प्रणाम कर यही विनती करता हूं कि आप अभिमान, मोह और मद इत्यादि को त्याग कर कौशलाधीश श्री राम जी का भजन कीजिए। हमारे पितामह मुनि पुलत्स्य जी ने भी अपने शिष्य के हाथों यही संदेश भेजा था, जिसे मैंने सुअवसर देखकर प्रभु आपको कह दिया। माल्यवंत अति सचिव सयाना, तासु बचन सुनि अति सुख माना। तात अनुज तव नीति विभूषण, सौर धरहु जो कहत विभीषण। रिपुत करश कहत 62, दूरी न करहु इहाई को। माल्यवंत ग्रह गयहु बहोरी, कहई विभीषणु पुनि कर जोरी। सुमति कुमति सब के उर रही, नाथ पुराण निगमस कहही। जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना।
तवौर कुमति बसी विपरीता, हितनहित मानहु रिपु प्रीता। काल राति निशिचर कुल केरी, तेहि सीता पर प्रीति घनेरी। तात चरण गहि मांगऊं, राखहु मोर दुलार। सीता देहु राम कहूँ, अहित न होई तुम्हार। माल्यवंत नामक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री, जो रावण के मंत्रियों में से एक थे, विभीषण की बातें सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुए। वे बोले, हे राजन, आपके अनुज जो नीति विचार आदि में प्रवीण हैं, जो कह रहे हैं उसे कृपया अपने हृदय में धारण कर उस पर अमल कीजिए। रावण दोनों की बातें सुनकर क्रोधित होकर बोला, ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा का ही बखान कर रहे हैं। यहां उपस्थित लोगों में से कोई इन्हें यहां से दूर ही क्यों नहीं कर देता। तब मल्यवंत तो अपने भवन चला गया, किंतु विभीषण जी पुनः हाथ जोड़कर विनती करते हुए कहने लगे, हे नाथ, पुराणों में ऐसा कहा गया है कि सुमति और कुमति अर्थात सुबुद्धि और कुबुद्धि तो सभी के अंदर उपस्थित रहती है। जहां सुबुद्धि होती है वहां नाना प्रकार की संपदाएं एवं सुख शांति रहती है। वहीं दूसरी ओर जहां कुबुद्धि हो वहां परिणाम स्वरूप विपत्ति के सिवाय और कुछ नहीं रह सकता। आपकी बुद्धि भी फिर गई है, इसी कारण आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं। जो राक्षस कुल के लिए साक्षात कालरात्रि के समान हैं, उन सीता के प्रति आसक्त हो आप प्रेमांध हो गए हैं। हे तात, मैं आपके चरण पकड़कर आपसे ये याचना करता हूं कि कृपया आप दुलार में मेरा हठ रख लीजिए और श्री राम जी के पास सीता को भेज दीजिए, जिससे आपका कोई अमंगल ना हो। अभी आप सुन रहे थे गान सरिता। आज इसके अंतर्गत हमने श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड का 10वां भाग सुना। इसे स्वामी के म्यूजिक कॉलेज के विद्यार्थियों ने ससंगीत प्रस्तुत किया था। ये सीडी के रूप में भी उपलब्ध है। साई प्रेम वाणी, भगवान श्री सत्य साई बाबा का दिव्य संदेश, अब हिंदी में। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम प्रेमावतार श्री सत्य साई। आज इसके अंतर्गत हम दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम भाग 2 पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के जीवन काल के कुछ प्रसंगों का एक भाग सुनेंगे। बाबा ने एक बार प्रशांति निलयम में कहा था, मेरा कार्य है धर्म स्थापना, विद्वत पोषण तथा वेद संरक्षण, और ये तीनों ही एक दूसरे पर आश्रित हैं। जिन तीर्थ स्थलों पर हजारों लाखों लोग श्रद्धा और विश्वास के साथ मानसिक शांति और आत्मसंतोष की प्राप्ति हेतु जाते हैं, उन्हें नवशक्ति संचार के साथ पुनर्जीवित करने का कार्य धर्म स्थापना के महान कार्य का ही एक अंग है। धर्म के संरक्षकों, व्याख्याताओं और उसकी परंपराओं के परिपालकों को उनके उत्तरदायित्व के प्रति सजग, सचेत और क्रियाशील करना अति आवश्यक है। सत्य ज्ञान के अध्ययन, अध्यापन तथा प्रचार प्रसार के लिए विद्वत पोषण, विद्वत जनों के यथोचित आदर सम्मान तथा
वेद संरक्षण के कार्यों की पूर्ति तभी संभव हो सकती है जब देश के पंडित और विद्वान बाबा के कार्य और अनुग्रह की परिधि में आ जाएं। बाबा के कार्य की शैली निराली है। उनकी महान योजना को समझ पाना कठिन है। जिस प्रकार उनके कार्य अचानक हो जाते हैं और उन्हें इस प्रकार पूरा हुआ देखकर सब लोग विस्मित रह जाते हैं, उसी प्रकार ये कार्य भी हुआ। आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी के मुहाने का क्षेत्र पहले से ही वैदिक विद्वानों और प्राचीन धर्म ग्रंथों और शास्त्रों के पंडितों का घर रहा है तथा वे लोग सामाजिक उपेक्षा और आर्थिक संकटों तथा नाना प्रतिरोधों और विरोधों के होते हुए भी वैदिक ज्ञान की ध्वजा को सदा ऊंचा फहराए रखने के लिए संघर्षरत रहे हैं। बाबा ने जब पूर्वी गोदावरी जिले की यात्रा की तो भक्तों ने निवेदन किया कि वहां के कार्यक्रमों में एक यज्ञ भी सम्मिलित हो। बाबा ने कहा कि यज्ञ तो प्रशांति निलयम में ही दशहरे के अवसर पर किया जाए, जब हजारों लोग देश के कोने कोने से एकत्र होते हैं और वे सभी इससे आनंद लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए तैयारियां शुरू हुई और यज्ञ के लिए कार्यविधि, सामग्री, पंडितों, शास्त्रियों आदि की सूचियां बनाकर बाबा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की गई तो बाबा ने देखा कि यज्ञ के लिए पंडितों का चयन केवल कोना सीमा क्षेत्र से ही किया गया है। बाबा ने वे सूचियां एक तरफ रखते हुए कहा, मेरी सीमा कोना क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है, वो एक देशीय न होकर सर्वदेशीय है। अतएव सूचियां फिर से तैयार की गईं और उनमें गोदावरी क्षेत्र के अतिरिक्त देश के विभिन्न भागों, वाराणसी, बेंगलोर और हैदराबाद के पंडित भी सम्मिलित किए गए। जब पंडितों ने यज्ञ के निमित्त अपने अपने स्थानों से प्रस्थान किया था तो उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि उनकी ये यात्रा उनके स्वयं के लिए और सारे देश के लिए कितनी महत्वपूर्ण थी। इसका बोध उन्हें तब हुआ जब वे यज्ञ के पूर्ण होने पर घर लौटे और अनुभव किया कि व्यक्ति, समाज और विश्व के शक्ति स्रोत वेदों के प्रति उनकी आस्था, विश्वास और भक्ति पहले की अपेक्षा अधिक बलवती और सुदृढ़ हो गई थी और उनमें एक नए साहस और उत्साह का संचार हो गया था। ये यज्ञ वेद पुरुष सप्ताह ज्ञान यज्ञ के नाम से संपन्न हुआ था। इसके 2 भाग थे। एक सप्ताह तक प्रातःकाल संपूर्ण विधि विधान एवं अंग प्रत्यंगों के साथ अति रुद्र होम होता था तथा सायंकाल ज्ञान यज्ञ होता था, जिसमें पंडित, विद्वान और मनीषी वेद और शास्त्रों के अर्थ और महत्व को स्पष्ट करते और समझाते थे। इसका उद्देश्य उत्सवों के द्वारा वैदिक आदेशों को तथा कर्मकांडों को सबके समक्ष व्यवहारिक रूप से प्रस्तुत करना था। अतएव बाबा के निर्देश थे कि कोई कसर, त्रुटियां, उपेक्षा आदि नहीं होनी चाहिए और पूर्ण सतर्कता और सावधानी के साथ प्रतिक्षण, प्रतिपल कार्यविधि का सुचारू रूप से परिचालन होना चाहिए। अतएव यज्ञ मंडप तथा उसके स्तंभों के आकार प्रकार की स्थिति, यज्ञ कुंडों की संख्या और आकार, विभिन्न देवियों और देवताओं, योगिनियों, क्षेत्रपालों और नवग्रहों की शुद्धि और सही रूप में स्थिति और स्थापना में पूर्ण सावधानी बरती गई। पंडितों के लिए कुश के आसन शास्त्रों में दिए गए निर्देशानुसार तैयार करवाए गए। इसी प्रकार यज्ञ में आहुति के लिए गाय के दूध का घी, वट वृक्ष की टहनियों की समिधा, चींटियों के बिलों, राजकीय घुड़साल, पीलछाला और राजमहल के परकोटे से एकत्रित मिट्टी, विभिन्न नदियों, तालों, समुद्रों का जल तथा इसी प्रकार अन्यान्य सामग्रियां बाबा ने स्वयं अपनी व्यक्तिगत देखरेख में एकत्रित करवाईं। यज्ञ में 7 दिन तक पूर्ण विधि के साथ भगवान के नाम और मंत्रों का उच्चारण करते हुए 2,26,270 बार घी की आहुतियां दी गईं। जैसा कि वेदों में कहा गया है, शांति कामास्तु होमयेत। ऐसे यज्ञ से विश्व में शांति स्थापित होती है और संसार का कल्याण होता है। इस वेद पुरुष सप्ताह में दिए गए अपने एक प्रवचन में बाबा ने कहा कि बहुत से हिंदू धर्मावलंबी ऐसे हैं जो अग्नि में घी की आहुतियां दिए जाने को
व्यर्थ का व्यय बताते हैं और उपहास के साथ इसकी आलोचना करते हैं। किंतु देवों को आहुतियां देने और उन्हें प्रसन्न करने का सेवा और परमार्थ की कामना के साथ त्याग करने के महत्व और आनंद का उन्हें क्या ज्ञान। उनका चिंतन अपने निजी स्वार्थों तक ही सीमित रहता है, क्योंकि उनको तो चिंता रहती है केवल अपने बही खातों में जमा की वृद्धि की, संचय की, फिर चाहे वो घृत हो, ईंधन हो या अन्न, वस्त्र आदि अन्य कोई वस्तु। मानव मात्र के सुख, शांति और कल्याण की भावना के लिए जो परंपरा से एक शास्त्र विधि, आचार, संस्कार चला रहा है, उसकी परिपूर्ति स्वयं में एक सुख और संतोषदायक कार्य है और उसका रुपये पैसों में कोई आर्थिक मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। बाबा का ऐसे आलोचकों से प्रश्न था। ऐसे आलोचकों ने अपने जन्म से लेकर अब तक सैकड़ों बोरी चावल और अनेकों पीपे घी के खाकर समाप्त कर दिए होंगे। मेरा उनसे प्रश्न है कि क्या उन्हें कभी एक दिन के लिए भी सच्चे सुख की प्राप्ति हुई है, अथवा उन्होंने अपने ही स्वजनों को एक दिन के लिए भी सच्चे सुख, आत्मिक आनंद की उपलब्धि करवाई है। किंतु इस यज्ञ से अनेकों को आनंद लाभ प्राप्त हुआ है। ये यज्ञ समस्त विश्व के लिए सुख शांतिदायक है और मेरे भक्त प्रसन्न हैं। यही इस यज्ञ का एक बहुत बड़ा फल है। जिसकी वेदों में आस्था नहीं है या जिन्हें ज्ञान नहीं है, केवल वे ही कहते हैं कि अग्नि में घृत डालना अपव्यय है। ये उसी प्रकार है जिस प्रकार कृषि के विषय में अनभिज्ञ व्यक्ति ये कहे कि खेत को जोतना, बीज बोना बेकार है। उसे ये ज्ञात नहीं कि बोए हुए एक बीज से सैकड़ों दाने प्राप्त होते हैं। जैसे एक पत्र पर सही पता लिखा हो, उचित मूल्य के डाक टिकट लगे हों, पत्र पेटिका में डाला गया हो तो वो वांछित व्यक्ति के पास पहुंच जाएगा। इसी प्रकार शुद्ध और उचित मंत्रों के साथ जो आहुति यज्ञ के अग्नि कुंड में पड़ेगी, वो वांछित यज्ञ पुरुष के पास पहुंचेगी। ये किसी भी अन्य विज्ञान के समान है। आंध्र प्रदेश के चोटी के वेद पाठी और वेद सम्राट के रूप में विख्यात ब्रह्मर्षि चिरकुमल्ली कामेश्वर गणपति ने यज्ञ के सर्वाध्यक्ष के पद पर गुरुतर उत्तरदायित्व वहन किया था और न्याय, वेदांत और ज्योतिष विद्या के एक प्रकांड पंडित को यज्ञकर्ता नियुक्त किया गया था। ज्ञान यज्ञ के अध्ययन पद के लिए नियुक्त किए गए थे वेदों के वयोवृद्ध विद्वान श्री उप्पलूरी गणपति शास्त्री, जो वेदों के अधिकृत भाष्यों के अनुरूप एक एक शब्द की विशद व्याख्या करने में समर्थ थे और जिन्हें विद्वत समाजों ने अनव्यर्थ वाचस्पति, वेद भाष्य विशारद एवं वेद भाष्यालंकार जैसे सम्मान प्रदान किए हैं। श्री गणपति शास्त्री ने लिखा है कि मुझे अपने 50 वर्ष के यज्ञों के अनुभव में इस यज्ञ के समान अन्य यज्ञ देखने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, जो शास्त्रों के विधि विधान और कर्म कांड के नियमों के समस्त अनुशासनों के अनुसार बिना किसी त्रुटि के शुद्ध रूप से संपन्न हुआ हो। प्रतिदिन सायंकाल जब प्रवचन होते थे तो उनमें शास्त्री जी इस बात का विशेष रूप से उल्लेख करते हुए बाबा के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करते थे कि पूर्ण वैदिक अनुशासन का दृढ़ता के साथ परिपालन करते हुए यज्ञ कर्म हो रहा था। बाबा के सामान्य या आकस्मिक कार्य भी कितने वेद संगत होते हैं, इसके विषय में शास्त्री जी ने वेद मंत्रों के उद्धरण देकर उनके महत्व को अनेकों बार स्पष्ट किया। जैसे ऋत्विकों को देव कहकर संबोधन, वेद पाठियों को श्वेत रेशमी वस्त्र तथा यज्ञ के अन्य कार्यों में लगे व्यक्तियों को लाल रेशमी वस्त्र प्रदान करना और यज्ञ के संपन्न हो जाने पर यथोचित क्रमानुसार सबको ससम्मान पुरस्कृत करना। शास्त्री जी ने यह स्वीकार किया कि बाबा यज्ञ पुरुष हैं। बाबा ने स्वयं घोषणा की, आप लोग किसी भ्रम में न रहें, मैं स्वयं यज्ञ करता नहीं हूं, मैं तो यज्ञ में दी जा रही आहुतियों को स्वीकार करने वाला हूं और यज्ञकर्ताओं को उसका फल प्रदान करने वाला हूं। और उन्होंने इसका प्रत्यक्ष प्रमाण भी दिया। यज्ञ संपन्न होने के एक दिन पूर्व बाबा ने घोषणा की,
मैं ये चाहता हूं कि कल जब यज्ञ में पूर्णाहुति पड़े उस समय आप में से प्रत्येक व्यक्ति ससंकल्प अपने मन के समस्त मल, घृणा और द्वेष, मोह और मद, काम वासनाओं और पाशविक प्रवृत्तियों को यज्ञाग्नि में समर्पित करें। बाबा के इस आह्वान को सुनकर वे समस्त लोग जो यज्ञ में पूर्णाहुति देने के लिए यज्ञों की परंपरा अनुसार स्वर्ण, रत्न, रेशम, चंदन आदि नाना प्रकार की बहुमूल्य सामग्रियां लेकर आए थे, विस्मित, सजग और सचेत हो गए। बाबा ने दूसरी घोषणा की, कल यज्ञ की पूर्णाहुति के समय आप सबको यज्ञ को स्वीकार करने वाले यज्ञ पुरुष के दर्शन होंगे। दूसरे दिन ठीक समय बाबा अपने वचनानुसार यज्ञ वेदी पर उपस्थित हुए और हजारों उपस्थित लोगों को दर्शन देकर कृतार्थ किया और लोगों ने बाबा की यज्ञ पुरुष के रूप में पूजन, स्तुति और वंदना की। यहां यह उल्लेखनीय है कि यज्ञ मंडप में जल पात्र के रूप में शिरडी साईं बाबा का कमंडल रखा गया था और उसका जल ही समस्त यज्ञ कार्यों के लिए यज्ञ मंडप में उपयोग में लाया जा रहा था, जो दोनों साईं रूपों की एकता का प्रतीक था। जब यज्ञ पुरोहित ने यज्ञ में स्थापनार्थ नवग्रहों की मूर्तियों की मांग की तो बाबा ने वहीं पर उसी समय अपना हाथ हवा में घुमाकर नवग्रहों की मूर्तियां प्रस्तुत कर दीं और जल पात्र में अर्थात उस कमंडल में रखने के लिए आचार्य ने स्वर्ण पात्र के लिए अपना हाथ बढ़ाया तो बाबा ने उसी क्षण एक स्वर्ण पात्र सृजित कर दे दिया। इसी प्रकार पूर्णाहुति के समय जब नवरत्नों की आवश्यकता हुई तो जैसे ही रत्नों के लिए पात्र उनके सामने किया गया, उन्होंने अपना हाथ उस ओर कुछ डालने की मुद्रा में किया और जगमग करते नवरत्न उसमें आ गिरे। यही नहीं, बाबा की दैविक शक्ति की एक और झलक देखकर सभी पंडित और हजारों की संख्या में उपस्थित जन समुदाय दंग रह गए। जब आकाश में मंडराते और गरजते सघन बादलों पर बाबा ने अपने निवास के बाहर आकर एक निगाह डाली तो कुछ समय में ही आकाश से सारे बादल छिन्न भिन्न हो गए, मानो बाबा ने जैसा कि उन्होंने शिरडी साईं के रूप में किया था बादलों को डांटा हो, अरे अपना उत्पात बंद करो और शांत हो जाओ, और सारा आकाश शांत और स्वच्छ हो गया। अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम प्रेमावतार श्री सत्य साई। आज दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम भाग 2 पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के जीवन काल के अलौकिक प्रसंगों का एक भाग प्रस्तुत किया गया था। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम दिव्यानुभव। आज इसके अंतर्गत हम भगवान बाबा के पूर्व विद्यार्थी श्रीमान जगदीश चंद्र जी द्वारा दिए गए संबोधन का 9वां भाग सुनेंगे। सन 2005 में वाइस चांसलर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। संपूर्ण देश से सभी बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ से उपकुलपति आए हुए थे और उन सब का आतिथ्य स्वयं स्वामी अपने देखरेख में कर रहे थे। तो उस उपलक्ष्य में स्वामी ने हम 4 छात्रों को फाइनल प्रोसीडिंग्स जो अंतिम दिन था उसके उपलक्ष्य में 4 छात्रों को बोलने का अवसर प्रदान किया और हम 4 छात्र 4 अलग भाषाओं में बोल रहे थे, एक हिंदी में, एक संस्कृत में, एक तेलुगु में और एक इंग्लिश में। जब हम सब चारों ने अपना वक्तव्य दिया तो हम चारों के मन में ये एक उतावलापन होता है कि हम स्वामी के साथ फ़ोटो खिंचाना चाहते हैं और हम स्वामी से कैसे कहें कि स्वामी हम आपसे के साथ एक फ़ोटो खिंचाना चाहते हैं।
लेकिन मन की सभी भावनाओं को भांपते हुए स्वामी सीधे सभी से बात करते हुए हमारे समक्ष आते हैं और दोनों हाथों को बोल फैलाकर हमारे हाथों को पकड़कर बोलते हैं, चलो हम सभी फ़ोटो खिंचाते हैं। ये स्वामी ने स्वयं कहा, और आज भी उसके बारे में सोचता हूँ तो गदगद हो जाता हूँ कि हमारे मन में एक छोटी सी प्रार्थना और किस प्रकार स्वामी ने उसका समाधान दिया। स्वामी स्वयं आते हैं और बोलते हैं हम फ़ोटो खिंचाएं, और हम चारों का हाथ पकड़कर एक सुंदर फ़ोटो स्वामी ने खिंचाया। और हमें से एक छात्र ने बोला, स्वामी हमारा जो वक्तव्य था क्या आपको पसंद आया? हम मात्र आपको प्रसन्न करना चाहते थे। स्वामी ने कहा, मैं हमेशा खुश रहता हूँ। फिर छात्र ने कहा, स्वामी जो भी मेहनत की हमने सिर्फ आपके लिए की। स्वामी ने कहा, ये भी जानता हूँ। और तब जब स्वामी अपने उस दिव्यता का अनुभव हमें देते हैं वो रोमांचकारी होता है। स्वामी ने कहा, मैं उस समय भी तुम्हारे साथ था जब तुम ये सोच रहे थे कि तुम इस विषय के बारे में बोलो कि उस विषय के बारे में। मैं उस समय भी तुम्हारे साथ था जब तुम म्यूज़िक कॉलेज के सामने खड़े होकर लैंप पोस्ट के नीचे ये सोच रहे थे कि मैं ये अनुभव बताऊंगा तो स्वामी खुश होंगे कि वो अनुभव बताऊंगा तो स्वामी खुश होंगे। जब तुम म्यूज़िक कॉलेज के सामने उन पेड़ों के नीचे रात को टहल कर अपने वक्तव्य की तैयारी कर रहे थे, उस समय भी मैं तुम्हारे साथ था। और अंत में स्वामी जब हमारे हाथ पकड़कर हमारे साथ फ़ोटो खिंचा रहे थे, स्वामी बोले, अब भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। वर्तमान, भूत और भविष्य, हर समय यदि हमारे साथ कोई है वो मात्र स्वामी है। ये एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है। कई बार स्वामी हमसे कहते हैं, एवरीवन इज पासिंग क्लाउड, गॉड अलोन इज परमानेंट। सब आने जाने वाले मेघ के समान है, परंतु ईश्वर एक ही है जो स्थायी है। और उसका अनुभव उस दिन स्वामी ने हम चारों को कराया। इसी वाइस चांसलर्स कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत एक बहुत ही रोचक बात सामने आई कि जो फाइनल डे प्रोसीडिंग्स हम कहते हैं, एक वाइस चांसलर आके उसकी समरी देते हैं, संबोधित करते हैं, हम सभी को बताते हैं कि इन 4 दिनों में जो संपूर्ण डिस्कशंस हुए उसका सार क्या है। तो उन्होंने बड़ी सुंदरता से कहा कि स्वामी, हमें मालूम है कि हमें यदि भारत की परिस्थिति, भारत की कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी की परिस्थिति को सुधारना है तो उसका उपाय बहुत ही सरल है। स्वामी, आप हर यूनिवर्सिटी में एक अवतार लेकर वाइस चांसलर बन के उस यूनिवर्सिटी में अपने आप को स्थापित कर लें। सभी यूनिवर्सिटीज़ की समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी। यानी कहने का तात्पर्य ये था कि स्वामी ने एक ऐसी यूनिवर्सिटी की रचना की जहां मानवीय मूल्य और भौतिक शिक्षा दोनों को एक साथ प्रदान किया जाता है। ये भारत में कहीं नहीं, मुझे नहीं लगता विश्व में भी ऐसी कोई यूनिवर्सिटी है, ऐसा कोई विश्वविद्यालय है जहां मानवीय मूल्यों पर इतना महत्व दिया जाता हो। स्वामी कई बार हमसे ये कहते थे कि मैं माता यशोदा की भांति हूँ। जब भगवान श्री कृष्ण बचपन में शरारत करते थे तो माता यशोदा उन्हें किस प्रकार अपने पास बुलाए छड़ी से मारने के लिए। तो स्वामी इस उदाहरण को लेकर बड़ी सुंदरता से बताते थे कि माँ यशोदा हाथ में मक्खन लेकर खड़े रहती थी ताकि भगवान श्री कृष्ण उसके प्रति आकर्षित होकर उनके पास आएं, परंतु पीछे उनके एक छड़ी छुपा के रखती थी कि जब वो पास आएं तो उन्हें सबक सिखाएं। स्वामी कहते हैं कि मैं भी उसी प्रकार एक और भौतिक शिक्षा को हाथ में लिए हुए हूँ ताकि उस भौतिक शिक्षा के माध्यम से, चाहे बीएससी हो, एमएससी हो या एमबीए हो, एमटेक हो, हम यूनिवर्सिटी तक खींचे आते हैं, परंतु पीछे हमें परिष्कृत करने वाली वो छड़ी है जिससे हमारा उद्धार हो सके, जिससे हमें बहुमूल्य पाठ पढ़ाए जा सकें। और ये मात्र इसी विश्वविद्यालय में हुआ। और शायद उस दिन वो उपकुलपति महोदय इसी बात की ओर इंगित कर रहे थे कि स्वामी, यदि भारत की शिक्षा प्रणाली में किसी प्रकार का कोई सुधार लाना है तो आपको ही अलग अलग यूनिवर्सिटी में अवतार धारण करके वहाँ का उपकुलपति या कुलपति बन जाना पड़ेगा, तभी इस समस्या का समाधान होगा। अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम दिव्यानुभव। आज इसके अंतर्गत भगवान बाबा के पूर्व विद्यार्थी श्रीमान जगदीश चंद्र जी द्वारा दिए गए उद्बोधन का 9वां भाग प्रस्तुत किया गया था।
इसी के साथ हमारे साईं प्रेम वाणी कार्यक्रम का समापन होता है। उम्मीद है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अपने सुझावों को हम तक ईमेल या व्हाट्सएप द्वारा जरूर भेजें। हमारा पता है listener@radiosai.org listener@radiosai.org एवं हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393258258 93 93 258 258। हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियाँ YouTube पर भी उपलब्ध हैं। इन्हें वहाँ देखने सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना न भूलें। हमारी वेबसाइट पर हमारे कार्यक्रमों को अपनी इच्छा अनुसार सुनने के लिए आप radiosai.org/hindi पर इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। भगवान के चरणों में हमारी श्रद्धा और भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए, इसी प्रार्थना के साथ हम साईं प्रेम वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। जय साईं राम।